پہلے تلاوت کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد کاٹ کے حافظ صاحب آگے آ جائیں. ادھر آگے تلاوت کریں ہم سب. محمد رفیق صاحب پریزیڈنٹ آف ICHS اور سیکرٹری صاحب مہدی خان شاکر صاحب اور افتتاح کر دیا ہے انہوں نے. یا اللہ پاک کے سوسائٹی میں تمام پریشانیاں تمام مشکلات دور فرماؤ. یا اللہ پاک تمام مسلمان آپ کے اتفاق و اتحاد و دولت نصیب فرماؤ. یا اللہ پاک کی سوسائٹی میں دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرماؤ. یا اللہ پاک اس محفل سے فضل و کرم فرماؤ. سوسائٹی سے فضل و کرم فرماؤ. ملک پاکستان سے فضل و کرم فرماؤ. عالم اسلام سے فضل و کرم فرماؤ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونبی زینت فرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم سر. شاجی ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے باقاعدہ آفس کا افتتاح کر دیا ہے اور آفس تیار ہو گیا ہے. تو ہم آپ کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے ممبروں کے لیے کیا خوشخبری لے کر آئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ممبر سے بات کر سکوں. بات یہ ہے کہ جتنی خوشی آج ملی ہے بہت خوشی ملی ہے آج, کیونکہ آج باقاعدہ سے سوسائٹی کا آفس جو ہے اس سائڈ میں منتقل ہو چکا ہوا ہے. اس لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی پوزیشن دینے کی 2-3 سال تک تقریباً ہم کو پوزیشن دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں خود کوشش کرنا کہ سارا ٹائم میں یہیں آفس کو دوں, سائڈ آفس کو دوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. اور یہ شاجی ٹی وی نے جو ہے آپ کو بتایا کہ ممبروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور باقاعدہ آفس کا افتتاح ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سے دیکھیں لوگ لاہور سے جتنے بھی ممبرز وغیرہ حضرات آئے ہیں انہوں نے شرکت فرمائی ہے. اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جناب مہدی خان شاکر صاحب ان سے تاثرات ان سے کہ نئے دفتر کے افتتاح کے موقع پہ اور سائٹ کے ڈیولپمنٹس کے حوالے سے سر بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں شاجی ٹی وی کا جس نے آج یہ ہمیں دعوت دی ہے اس خیالات کے اظہار کا. الحمدللہ جی آج ایک سنگ میل عبور کر رہے ہیں. ہماری کافی عرصے سے کوشش کی کہ سوسائٹی کا آفس ہم سائٹ پہ. یہ آفس جو ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائٹ آفس سوسائٹی کا جو ہیڈ آفس ہے وہ آپ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ سے ممبروں کی تعداد, ممبروں کا اضافہ اور بہت خوش آئین بات ہے. ICHS کے تمام ممبروں کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ باقاعدہ جو ہے آفس کا افتتاح ہو چکا ہے. ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی تشریف فرمائیں ادھر سارے اور دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام جو ہے سوسائٹی کا دفتر آج آپ لوگوں تمام ممبروں کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے. ICHS کے جتنے بھی ممبرز ہیں اور تمام ساتھیوں سے یہ باقاعدہ سوسائٹی کے آفس کا دورہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب اور ہمارے یہ ایگزیکٹو ممبر سرفراز محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ سے. ابھی ہم ان سب کے باری باری آپ کو تاثرات اور انٹرویوز چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ دیں گے تاکہ یہ اپنے تاثرات دیں اور بتائیں اپنے ممبرز وغیرہ کو. یہ چودھری نعیم اکرم صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری بھی سوسائٹی کے ہیں. اس خوشی کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے فائنانس سیکرٹری بڑی ریڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی ادارے میں جو ہوتے ہیں, تو ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے اپنے ممبرز وغیرہ آزاد کے لیے کیا خوشخبری لے کر آئیں. آج تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے باقاعدہ آفس کا افتتاح کیا ہے. سماعت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک خواہش تھی کہ جہاں ان کا اپنا آفس ہو اور جہاں کے ممبرز کو انٹرٹین کر سکیں, سائٹ وزٹ کروا سکیں اور کئی اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ اس میں کسی چیز میں سستی کمی کا شکار نہ ہو. ماشاء
कल तो एक हमारा अपना ऑफिस बन गया है और जहाँ से पूरे पाकिस्तान में लोग उसको अपनी शक्ल दे सकते हैं, कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट में बड़ा इजाफा होगा, तेज़ी से काम चलेंगे। इसी जगह मेंबर की कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, इसी आर्टिस्ट स्पॉट वो हल भी हो जाएंगे। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी टीवी की तरफ से। नाज़रीन, आपने ये देखा कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब ने अपने तासुरात दिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद शाह साहब, मीडिया एडवाइज़र हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। इनके तासुरात पूछते हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस की शिफ्टिंग के हवाले से और इसमें होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। शाह साहब बताइएगा अपने तासुरात प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तहसील फ़तेह जंग और सी पैक के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि इन दिस टाइम जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स लोगों की होती है वो सस्ता घर, सस्ती छत फराहम करना होती है। और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है कि जिसमें 13-14 लाख का 5 मरले का जो प्लाट डेवलप हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की देरीना मसाइल ये थे कि साइट पे लोग विज़िट करते थे लेकिन साइट पे ऑफिस नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी की देरीना कोशिशों काविशों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस की ओपनिंग हो रही है और बाकायदा स्टाफ भी बैठना यहाँ शुरू हो जाएगा। और इसके फ़ौरन बाद तकरीबन महीना 1.5 महीने के बाद फ़ेज़ 2 की मुकम्मल डेवलपमेंट का काम जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला ये हम शुरू करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक गोल्ड माइंस बन के सामने आएगी। और मेरा तो ख्याल ये है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपने इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर जो है वो रोशन हो सके। जनाब शाहजी टीवी का मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है, इल्तमास भी है कि शाहजी टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप देख सकें। आपको ज़ैद इकबाल खान साहब से यहाँ के ये मुकामी हैं, इनसे पूछते हैं कि सोसाइटी के हवाले से आपका क्या द्वारा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सरदार रफ़ीक साहब को, मेहदी खान शाकर साहब को, जिनकी कावश से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दफ्तर भी यहाँ शिफ्ट हो गया है। बहुत सारे अहबाब के सवालात ख़त्म हो गए हैं कि दफ्तर कब शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है शिफ्ट। मैं यहाँ का मुकामी ज़िम्मेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी भी दिन रात काविश है इस सोसाइटी के साथ। ज़िया खान, ज़फ़र खान, मैं हो गया, बाकी अहबाब हैं। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ हमें बहुत देर तक नज़र आ रही थी कि कब होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्द हो गया। आज जो दोस्त यार आएंगे उनको चाहिए कि वो साइड पे अपनी विज़िट करें, देखें डेवलपमेंट का काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर से। और ये है कि पूरा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है, यहाँ पे स्टाफ सारा आ गया है। मेहदी साहब का काम स्टार्ट हो गया है, सरदार साहब का काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे अपने अपने ऑफिस में। तो बाकी अहबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आएंगे इस्लामाबाद से, हमारे मेहमान दौर से आएंगे, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं और उनको ये मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे हाफिज़ आके अभी इंशाअल्लाह दिन रात काम होगा और सोसाइटी जो है
अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होगी। बहुत मेहरबानी। जाहिर साहब आप देखते हैं बहुत खुशी का दिन है आज ICHS के मेंबरों के लिए। लोगों का ताना बाना लगा हुआ है। माशाल्लाह से मेंबरों की एक बहुत बड़ी तादाद आज जो है ICHS टाउन में हाजिर है और आप बहुत इंशाल्लाह ये वीडियो देख के खुश होंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छे इंसान है और ये बहुत अच्छी वीडियो होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। देखिए मेंबर्स वगैरह जो हैं माशाल्लाह से बहुत खुश हैं और बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस सारे चीज़ के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। ये देखें बाकायदा फंक्शन अरेंज किया गया है, इधर बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया है मेंबरों के लिए। आप देखते जाएँ माशाल्लाह से। हमारी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ICHS टाउन के हैं, ज़फ़र साहब हैं। तो ज़फ़र साहब आप अपने तासुरात बताएं इस मौके के ऊपर। बहुत खुशी का मौका है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेंबरों के लिए कि स्टाफ जो है और जो दफ्तर है ICHS का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने ये दिन दिखाया और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने कम्युनिटी सोसाइटी के इफ्तिताह के मौका पर। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कदम है अच्छे की तरफ और इंशाल्लाह इसी तरह सहूलियात मैसर आती रहेंगी, डेवलपमेंट का काम होगा और इस्लामाबाद सोसाइटी इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और ये मौके पर फैसिलिटी है किस्म की अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने की, अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए और अपनी ट्रांसफर मौका पर ही लेने के लिए, क्योंकि सारा कार्ड इधर होगा तो और लोगों को देखने में भी आसानी होगी और कार्ड अपना मेंटेन करने और उसे ट्रांसफर के लिए भी सहूलत मौका पर सोसाइटी के अंदर मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और देखें नाजरीन, आपको बहुत खुशी का दिन आज महसूस होगा कि मेंबरों की बहुत बड़ी तादाद और ये एयरपोर्ट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। और ये सोसाइटी जो है इसके अंदर आप देखें माशाल्लाह से मेंबरों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला अब सोसाइटी तरक्कियों की तरफ गामजन है। तो ये एक असद साहब हैं, इनके मुतालिक भी बहुत सुना है। असद साहब के मुतालिक भी ये ICHS टाउन के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। तो इनसे तासुरात आज लेना चाहते हैं, शाजी TV की तरफ से आपके तासुरात जानना चाहते हैं कि आज बाकायदा ऑफिस का इफ्तिताह हो गया, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है। तो आप क्या अपने मेंबर्स को और व्यूअर्स को अपने तासुरात बताना चाहेंगे? माशाल्लाह इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में ये इस इलाके की सबसे अच्छी सोसाइटी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसका महल और ये नागुज़ीर हो गया इंतजामिया के लिए भी कि इसको एक्नॉलेज करना और तमाम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह ये डबल ट्रिपल होके बाहर निकलेगी। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्टद खतीब साहब और उनकी टीम लाहौर से तशरीफ लाए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद। इख्तिसार से काम लेते हुए अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के नायब सदर साबिक वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हम सबके इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर शौकत सिद्दीकी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से तमाम मेंबरान सोसाइटी और इस इलाका के जितने मोअज़्ज़ीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पर मौला बंगू के मोअज़्ज़ीन जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को इस मुबारक मौका पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इस मौका पर मुबारकबाद भी देता हूँ कि आज वो अजीम काम होने को शुरू हो रहा है जिसका हमें 22-23 साल से इंतज़ार था। मैं भी उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने इस सोसाइटी की मेंबरशिप आज से 22 साल पहले हासिल की थी और पूरे 22 साल में हमें ये इंतज़ार था कि ये मौका कब आएगा जब हम लोगों को ये बताएंगे कि जहाँ पर हमारी सोसाइटी है, जहाँ पर हमारा ये ICHS टाउन है और वहीं पर हमारा ऑफिस है। तो आज 10 तारीख को वो मुबारक मौका आ पहुँचा है कि हम सबको बता सकते हैं कि आइए देखिए कि हमारी कितनी अजीम शान सोसाइटी अब फंक्शन कर रही है और यहाँ पर हमारा ऑफिस का निज़ाम भी पूरा ब्लू एरिया से मुंतकिल हो चुका है। अब देखें इन 22-23 साल में जैसे मैंने देखा कितने नशेबो फराज आए, कितनी गर्मियाँ, कितनी सर्दियाँ, कितने हालात। मुझे तो वो पूरी मैनेजमेंट कमेटी याद है कि जब हमने ये काम शुरू किया था उस वक्त के तमाम लोगों का। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत होती है कि जिसके नाम अल्लाह ताला ने कुर्रा लिखा हो मुबारकबाद का, वो सारे साल गुजरते गुजरते उन्हीं के नाम पर पहुंचता है। किसी को आज से 15-20 साल पहले पता नहीं था कि ये कुर्रा मुबारकबाद का किसके नाम लिखा है। तो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब सदर रफीक साहब को और जनाब मेहदी अली शाकर साहब को कि अल्लाह ताला ने ये उनके नाम पर कुर्रा लिखा हुआ था कि उनकी कोशिशों से आज इस अजीमुशान हाल भी कम्युनिटी हाल को आपने पहले देखा है और इस बहुत अच्छे दफ्तर को आपने विजिट करके देखा है कि माशाल्लाह मैंने बड़ी सोसाइटियों को देखा है, उनमें से किसी सोसाइटी के मुकाबले में ये दफ्तर जो है कम नहीं है। और उसी तरह यहाँ पर रिस्पेक्टफुल निज़ाम रखा गया है, मुअज़्ज़ीन के आने की जगह भी है, तमाम जिन कारकुनों ने काम करना है, अकाउंटेंट का काम है, सेक्रेटरी का काम है, चेयरमैन साहब से मिलना है, विजिटर्स हैं, तो सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़र्ज है, बहुत फजल है कि उन सब के लिए बड़ी मुनासिब जगह का इंतजाम किया गया है। तो मैं एक बार दोबारा तमाम अराकीन जो ICHS के मेंबर हैं और जो इलाका के मुअज़्ज़ीन हैं उनको एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से और पूरी सोसाइटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि आज हम इस मुबारक मौका पर यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने हाथों से इस दफ्तर का इफ्तिताह किया है। और मुझे अल्लाह के फजल करम से बड़ी उम्मीद है जब दफ्तर खुल गया है तो यहाँ कई लोगों की आमदोरफ्त होगी। जब आमदोरफ्त होगी लोग इस इलाके को देखेंगे, इसके पोटेंशियल को देखेंगे, इसकी आने वाली कुव्वत को देखेंगे कि यहाँ कितना आगे स्कोप है इसके बढ़ने का। तो मैंने भी आपके साथ बहुत इंतजार किया है, 20-22 बरस की मसाफत हम सब ने तय कर लिया है और अब आज से वो दौर शुरू हो रहा है जो इंशाल्लाह इसकी आने वाली तरक्कियों का दौर है, इसके आगे बढ़ने का दौर है। और इंशाल्लाह जब हम बड़े फख्र से कह सकेंगे कि ये सोसाइटी है जिसको हमने कायम किया और आज आप आएँ और देखें कि इसका हर शोबा किस तरह बतरीके आसन काम कर रहा है। तो मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ रफीक साहब और मेहदी अली शाकर साहब और इनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने अपना ये ज़बरदस्त फरीज़ा अंजाम दिया और आज हम इस मौका पर पहुँचे हैं कि इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि और कई नई इसमें इनोवेशन और काम होंगे जिसके लिए हम आप सबको हमेशा दावत देते रहेंगे। आप सबका तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेवल का है, चाहे वो बड़े लेवल का है, उसके अंदर मसाइल मुश्किलात बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से और इन लोगों की मेहनत और जज्बे की वजह से तमाम तर मुश्किलात खत्म होती नजर आ रही हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे बहुत सी नई तब्दीली
تبدیلیاں نظر آئیں گی. اور آخر میں میں ان لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں اپنے اہل علاقہ کی طرف سے کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں کچھ مسائل ہیں، جس طرح کے بنیادی مسائل اسکول ہو گئے ہیں. یہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، تو میں ان سے یہ امید کروں گا کہ یہ جلد از جلد یہاں پہ اچھے سے اسکول کا افتتاح کریں، تاکہ ہمارا علاقہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہتے ہیں صدقہ ایک جاریہ ہے. آپ دیکھیں 3-3 4-4 سال کے بچے صبح ٹھنڈ کے اندر دور دراز اسکولوں میں جا رہے ہیں. یہ ساتھ ہمارا گاؤں ہے، اور یہاں پہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک اچھے سے اسکول، اچھی سی برانچ یہاں پہ لے کے آئیں، تاکہ ہمارا علاقہ ان کی وجہ سے یہ جو ترقی کر سکے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہاں پہ کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ 2 بنیادی ضروریات ہیں ہماری، تو ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آخر میں آپ یقین مانیں کہ یہ نہیں کہ یہ میں ان کی تعریف ان کے منہ بھی اوپر کر رہا ہوں، ان کی زمینداروں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، یقین مانیں کہ ایک فون کال کے اوپر لوگ اپنی جگہ کا بغیر کسی فیس کے اوپر قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دوسری سوسائٹیز کے اندر دیکھیں کئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی آج تک ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو آخر میں نے کچھ شعر تیار کیے ہیں جو کہ ہر ایک کیٹیگری کے لیے، اور خصوصاً در خصوص جن حالات میں یہ لڑے ہیں، تو میں نے خود اس لحاظ سے یہ تیار کیے ہیں. جو جنگ سے پہلے ہار مان جائے، جو جنگ سے پہلے ہار مان جائے، ایسے صبح سالار کا کیا فائدہ، جو اپنے پرائے کو پہچان نہ کر پائے، ایسے رشتے کا کیا فائدہ. جو پیٹھ پیچھے وار کرے، جو پیٹھ پیچھے وار کرے، ایسے یار کے یارانے کا کیا فائدہ. جو ہتھیار صرف نمائش کی خاطر ہو، جو ہتھیار صرف نمائش کی خاطر ہو، ایسے بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ. جو سر کسی غیر کے آگے جھک جائے، جو سر کسی غیر کے آگے جھک جائے، ایسے سر پہ دستار کا کیا فائدہ. اور الحمدللہ میں یہ امید کرتا ہوں ان مشکل حالات میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، کسی کے آگے نہیں جھکے اور نہ ہی ہمیں شرمندہ کیا ہے. تھینک یو جناب. اب میں گزارش کروں گا سردار محمد امان سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سردار محمد. اچھا تالیاں بجانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، یہاں کے ذمہ داروں، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں کم از کم 10,000 آدمی ہو تو بات شروع کرتا ہوں، تو مجھے یہ 50,000 آدمی لگ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے اور سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بات کرنے کے لیے تھوڑی سی حرکت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بہت ضروری بات ہے. جس بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 چہرے ایسے جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے، ایک وہ چہرہ جو مشکل ٹائم پر کھڑا رہے اور ایک وہ چہرہ جو مشکل ٹائم پر ساتھ چھوڑ دے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رفیق صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے جس بندے نے تعلق قائم کیا، دعا سلام قائم کی اور مشکل ٹائم پر ساتھ دیا، وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں کے ذمہ داروں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ رفیق صاحب
साहब का ये ऐलान है कि कोई भी जिम्मेदार बंगलों से तशरीफ लाए उसके लिए ये समझे कि मैं दरवाजे से अंदर एंट्री हो गया हूँ, उसकी वो इज्जत की जाए, वो रिस्पेक्ट की जाए जिस तरह लोग भाइयों की करते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसी तरीके से जिस बंदे ने इस सोसाइटी में रहकर काम किया वो हर बंदे का रफीक साहब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से प्यार करते हैं। मेरे भाइयों, मुझे 3 घंटे चाहिए बात करने के लिए, लेकिन अफसोस के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर सकता। मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं सियासत के सैयद तारिक अली, जब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे तो सरदार अमान साहब की तकरीरें याद हैं हमें जी। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे आपके सबके हर दिल अजीज, अच्छा कभी उनके चेहरे पे नागवारी नहीं आई, कभी उन्होंने किसी का टेलीफोन इग्नोर नहीं किया, अगर किसी वजह से हो गया है तो रिंग बैक भी हमेशा करते हैं और हर बंदे से खंदा पेशानी और प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। बंदा एक होता है, वहाँ पे काम 15 होते हैं और बंदे 25 खड़े होते हैं और हर बंदे को एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे हम सबके हर दिल अजीज सेक्रेटरी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोहतरम जनाब मेहदी खान शाकिर। उधर से मैं इस पंडाल में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि मौज़े बंगू से तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, हम सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें एक संग मील अबूर करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। आप दोस्तों की तालियों के साथ चंद लम्हे पहले हमने इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। आपने बिल्डिंग के अंदर जाकर उसका मुआयना किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि यहाँ पे अपने मेंबरान को हर तरह की सहूलत फराहम कर सकें और उनके हर किस्म के मसले के हल के लिए अलग-अलग उसके इंतजामात किए हैं इंशाअल्लाह। ये बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी है ये इतनी आसानी से नहीं बन गई, इसके पीछे बहुत सी मेहनत इन्वॉल्व है। ये ज्यादती होगी कि मैं इसमें जिन दोस्तों का हाथ है उनको इग्नोर करूं। काबिल तहसीन है, इसमें गलतियां इंसान से होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद राना हबीब साहब तारक साहब जो हमारे इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, उनकी बहुत बड़ी काविश है इसको तैयार करने में। मेरे सदर साहब का रफाकत और गाइडेंस मेरे साथ साथ रही। ये प्रोजेक्ट आपके सामने पाया तकमील को पहुंचा, जहां पे हम अपने मेंबरान की सहूलत के लिए हर किस्म के चीजें प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और हफ्ते में सरेदस्त रफीक साहब यहाँ पे 2 या 3 दिन बैठा करेंगे, 1 या 2 दिन के लिए मैं भी यहाँ बैठूंगा। अभी इस्लामाबाद का ऑफिस हम रन करेंगे साथ साथ पैरेलल, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह की चीजें हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम है। जब तक हमारे पास बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं आता हमें वो ऑफिस भी साथ साथ रखना पड़ेगा। तो इसमें जो साइट स्टाफ है उसका भी बड़ा किरदार है और हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज आए हैं, अपने सुपरवाइजर शबीर साहब, इन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। और खासकर आज जो फंक्शन है इसको मुनज़्ज़म करने में शबीर साहब का बड़ा हाथ है। हमारे दोस्त हैं ज़िया खान साहब और जायद इकबाल खान साहब ने इस पर बड़ी मेहनत की है, मैं इन सबका मशकूर हूँ। और अल्लाह करे कि आइंदा भी इसी तरह अपनी वफादारियाँ और अपनी मेहनत के साथ हमारे फंक्शन को मुनज़्ज़म करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों, मैं अभी कल हमारे ऑफिस का एक बच्चा है हुमा हैदर, वो कल कहीं यहाँ से ऑफिस से काम साइड से काम छोड़ के छुट्टी पे कहीं घर जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी शायद कोई पसली डैमेज हो गई है। तो आप भाइयों से दुआ है कि उसकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं सारे। और दूसरा उसके जो भी इलाज का खर्चा है वो हम इंशाल्लाह देंगे। 10,500 रुपया देते हैं और आगे जो भी खर्चा होगा शबीर साहब उसको आपने मैनेज करना है। उसका जो भी खर्चा आता है उसकी अपने बीमारी का वो आपने हैंडल करना है, मुझे बताएं, ठीक है? अल्लाह ताला
मेरे दोस्तों, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के हजूर मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले माह जनवरी में 2023 के आगाज़ में जनवरी के महीने में हम इंशाअल्लाह यहाँ पे इसी तरह का एक फंक्शन मुनज़्ज़म करेंगे और जिसमें इंशाअल्लाह हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जनवरी में एक अच्छी खुशखबरी आपको के लिए लेके आएंगे। हमारे बहुत से ओवरसीज दोस्त हैं जिनकी पुरजोर फरमाइश रही है कि आपने हमारे लिए कोई ब्लॉक वगैरह नहीं दिया जिसमें हम जो कम्युनिटी है ओवरसीज की उसको अकोमोडेट किया जा सके। तो इन दोस्तों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर हमने ओवरसीज ब्लॉक के इनकाद का अपना प्लान किया है और उसके लिए हमने 3 साइजेस के प्लाट रखे हैं, 6 मरला, 12 मरला और 1 कनाल, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ बुकिंग वही दोस्त कर सकेंगे जिनका ओवरसीज पासपोर्ट है या वीज़ा है उनका वैलिड। इसके अलावा किसी और की उस पर बुकिंग नहीं होगी। और अगर आपके कोई दोस्तों अहबाब इस तरह के हैं जिन्होंने ओवरसीज हैं, उनके प्रॉपर वैलिड वीज़ा है, पासपोर्ट है, तो वो 15 दिन के अंदर आप उनकी बुकिंग ले सकते हैं। 15 दिन के बाद ये बुकिंग क्लोज हो जाएगी और ये हमारे जो फॉरेन दोस्त हैं जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सारे जो भी प्लाट हैं वो अपने तौर पर वो अपने बुक करने का इरादा रखते हैं। आप दोस्तों में से किसी दोस्त का अगर ओवरसीज भाई दोस्त है उसको आप 15 दिन के अंदर फार्म सोसाइटी से लेके बुकिंग करवा सकते हैं। 15 दिन के बाद इसकी बुकिंग बिल्कुल क्लोज हो जाएगी और कोई फार्म सोसाइटी से आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ हम ये दोस्त बाहर के हैं उनके लिए हमने ये तैयार किया है और सारी बुकिंग उन्हीं के पास होगी। इससे आपको एक तो फायदा ये होगा कि जो हम उसका रेट रखा है वो काफी बेहतर है, जिससे आपके जो मौजूदा प्लाट है उनके रेट भी बेहतर हो जाएंगे, जिससे इसको काफी स्कोप इंशाल्लाह मिलेगा। उसके अलावा आप दोस्तों से ये इल्तमास है कि यह जो फेज 1 है इसमें जो प्लाट पोजेशन वाले हैं उसमें अपने घर शुरू करें, कब्जा लें, अपने घर बनाएं। मेरा अपना घर वहाँ पे शुरू है, बैक साइड पे किया काम शुरू है। सदर साहब का घर भी अपने कंस्ट्रक्शन है वो भी हो रही है। और बाकी दोस्तों बाप जो भी जिनके प्लाट हैं अपने हमारे राणा साहब बैठे हैं, इनसे कहूँगा कि अपना प्लाट लें और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तारक भट्ट साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनका प्लाट है, क्यों नहीं शुरू कर रहे? तारक भट्ट साहब आपका वादा था कि 7 दिन में करूंगा, ज्यादा दिन हो गए। ये 7 साहब हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, इनका घर शुरू होकर फिर रुका हुआ है। इनसे गुजारिश है कि ये करें। उसके बाद हमारे एक दोस्त इधर चौधरी अरशद साहब तशरीफ रखते हैं स्टेज के ऊपर, इनका बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि मुझे प्लाट का कब्जा नहीं दिया। मैं आज इनको प्लाट के कब्जे का ऐलान करता हूँ और साथ ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि विदिन 7 to 15 डेज काम शुरू कर। देखिए यहाँ पे घर बनेंगे, आबादी होगी तो रौनकें लगेंगी। आज कसम खुदा की इसको देख के बड़ी खुशी होती है कि एक जो दरख्त हमने आज से कुछ साल पहले लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह ये पाया तकमील की तरफ पहुंच रहा है और ये शहर आबाद होगा। ये शहर जब आबाद होगा तो इसका फायदा मेरे मोअज़्ज़ज़ीन बंगू उसको हमारे से सबसे ज्यादा होगा। तो इनको बजाय जो इस्लामाबाद में सहूलतें हैं इंशाल्लाह यहाँ मिलेंगी। अपने सरदार शोएब साहब ने गुजारिश की है उसके लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल तो हमने बना दिया था शेख साहब ने, उनसे गुजारिश करते हैं कि उसको कम अज कम हफ्ते में एक दिन तारक साहब उनसे गुजारिश करें कि कम अज कम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें जो उनका डॉक्टर है वो यहाँ पे विजिट करे और लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करे। कम अज कम हफ्ते में एक दिन लाजमी करें। इतनी बिल्डिंग बना दी है, इतना खर्चा किया है तो इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। और जहाँ तक स्कूल का तल्लक है उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं तो होपफुली हम इंशाल्लाह एक अच्छे स्कूल की तरफ भी आप लोगों को ये तोहफा देंगे। तो मेरा ख्याल टाइम काफी हो गया है। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त निकाला और आपने हमारे इस महफिल में जो आज हमने इस कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया है इसमें शिरकत की। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर हूँ और आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि आप सोसाइटी के लिए हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। इस मुल्क में काम निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, बड़ा मुश्किल है। आपकी दुआएं चाहिए ताकि मैं अगले महीने में आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप जी रूहे रवा बंगू के भी, कश्मीर से भी, बाराकोट से भी और F10 ब्लू एरिया, G11, G15 क्या दिनों हर जगह पे लोग मोहब्बत करते हैं।
प्यार करते हैं इनसे। आपकी तालियां बताएंगी कि यहाँ बैठे हुए लोग कितना प्यार करते हैं। तो मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाब सदर इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद रफीक साहब। मुझे यूएसबी में दे देंगे? जी जी। शौकत अली सदीकी साहब लाहौर से आए हुए मेहमान, बंगों के शहजादों, रियल एस्टेट के गुलदस्ते के फूलों को सबको मेरी तरफ से सलाम सलाम सलाम। अभी जो मेहदी साहब ने ऐलान किया ओवरसीज ब्लॉक, बड़ी देरीना ख्वाहिश मेरी भी थी और लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने ये शुरू किया। ओवरसीज में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी भट्टी साहब बैठे हुए हैं स्टेज पे, जर्मन नेशनल है ये, तो इन्होंने कहा है कि पहला 1 नंबर जो है ना वो मैं लेता हूँ, तो 1 नंबर से शुरू करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की खिदमत आप समझ सकते हैं या नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो, जो बाहर से पैसे भेजते हैं सर्दी गर्मी में वो काम करते हैं कि वहाँ जाकर उनको सदर तो सेक्रेटरी को नहीं लगाएगा ना, मजदूरियाँ ही करते हैं बेचारे लोग, कई कारोबार करते हैं, कई मजदूरियाँ करते हैं, तो वहाँ उनकी सर्दी गर्मी में हालत बड़ी ख़राब होती है। वो एक पैसा हमारे लिए भेजते हैं पाकिस्तान में, अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो पाकिस्तान का है। और उसके बाद अगर हमने ये कहा, मैंने कहा चले इनका नाम का एक ब्लॉग बना देते हैं, और इनकी रिक्वेस्ट पे, बाहर के लोगों की रिक्वेस्ट पे, कई लोग हमारे फ्रांस में बैठे हुए हमारे मेंबर, अमेरिका से मुझे कॉल आती रहती है, वहाँ भी हमारे मेंबर हैं। फ्रांस में एक बंदा है, वो गुजर खान के रहने वाले, 4 कनाल का घर है, वो सदर मित्रा का 10 मरले का घर, उनका 4 कनाल का घर। कई दफ़ा वो मुझे दे चुके हैं दावत के, आए आप फ्रांस मेरे साथ रहें, तो टाइम ही नहीं मिलता यहाँ से, दिन रात इस तरह लगे इस काम से कि ये हजम जो है इतना बड़ा हजम बना लिया हमने, तो इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम पाया तक पहुँचाएंगे। आप सब लोगों का कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करने होने पर मुबारक हो आपको। और इतने दूर से आए हैं आप, लाहौर से भी दोस्त आए हैं, इस्लामाबाद से दोस्त आए हैं, इतना महंगा पेट्रोल डाल के गाड़ियों में आए हैं, आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रिया आपका। थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि बंदे नहीं हैं, कम बंदे हैं, तो मैंने कहा बंदे आ जाएंगे, हमारे साथ बंदे आते हैं, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी है, बड़ा प्यार देते हैं आप लोग, मैं आपका एहसानमंद हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ, जरा बंगलों की तरफ जाता हूँ, जरा ये मेरे बंगलों के शहजादे हैं, बैठे हुए हैं सारे। मैं आपको बताऊँ कि 10-12 हज़ार कनाल जमीन, ठीक है, कुछ बयाने, कुछ टोकन इंतकाल, ठीक है जी। कोई बंदा खड़ा होकर ये बता दे कि कोई एक बंगों के शहजादों ने 1 रुपया हमने कब्जे का दे दिया किसी। यहाँ ऐसे बंदे भी बैठे हुए मौजूद हैं कि ये जमीन पहले इंतकाल करवा लेते हैं, तो पैसे बाद में देते हैं हम इनको। एक दफ़ा किसी इंक्वायरी में, झूठी किस्म की इंक्वायरी थी, उसमें चले गए हम पे, शायद गलत साहब हैं, यहाँ के बड़े जिम्मेदार हैं, एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम हुई 4-5 हज़ार कनाल का मैं मालिक हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं 1 दिन में आपको इंतकाल करवा दूँगा। इससे ज़्यादा कुर्बानी कोई मेरे ख्याल दुनिया में नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि बड़े गौरतलब बात है, गौर से सुनिए। राजा बाजार में चले जाएं, एक मरले की कीमत मेरा ख्याल है होगी वहाँ फुटों के हिसाब से ज़मीनें बिकती हैं। कमेटी चौक देख लें, टेंचपाड़ा देख लें, या लाहौर देख लें, या कोई भी शहर देख लें, उसकी हालत ये होती है कि साथ से गंदे नाले गुजर रहे होते हैं, और अंदर तो बहुत कुछ अच्छा लगा होता है, एसी भी लगे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बाहर की स्मेल तो फिर भी अंदर जाती है। तो करोड़ों अरबों रुपये की प्लाट है, और सारी इंसानी जिंदगी के लिए साफ हवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए। और उस गंज से निकले, मेरा बात करने का मतलब ये है, पिछले दिनों मुझे एक आदमी कहता है कि आप लाहौर शिफ्ट हो जाए, मैंने कहा आप मुझे फ्री घर दे दें, लाहौर में कभी ना शिफ्ट हूँ। तो लाहौर वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सोसाइटी में घर बनाएं, प्लाट जिनके नहीं है प्लाट लें, और खुली फजा पे आ जाएं, ताकि आपकी सेहत हमारी हमें आपकी जिंदगी की जरूरत है। लाहौर और दुनिया का अखबार में मैंने पढ़ा आलूदा तरीन शहर है दुनिया का, तो फेफड़े क्यों अपनी साफ जगह जाए। ये सोसाइटी में साफ माहौल है, खुली फजा है, ठीक है ना। और ये नया शहर हमने रख दिया, नए शहर की बुनियाद बसा दिया, नया शहर, ठीक है। उस शहर को मजीद आगे चलाएं। और प्लाट ये इस्लामाबाद के लोगों, पिछले दिनों अखबार में हमने पढ़ा, इस्लामाबाद भी वो उसमें
خراب ہے ماحول اس کا بھی. تو اسلام آباد کے لوگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ اتنی مہنگی پلاٹ لینے سے کیا فائدہ ہے. یہ آپ کا انشاءاللہ سی پیک بھی چل رہا ہے, اس سے بھی ہمیں انٹری مل جائے گی انشاءاللہ, اور بہت جلد وہ دوبارہ لائن پرانی لائن پہ رنگ روڈ بھی چل رہی ہے. تو یہاں سے آپ کا 20 منٹ کا فاصلہ ہو جائے گا اسلام آباد کا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ ادھر پلاٹ لیں, پلاٹ لے کے یہاں گھر بنائیں, سستے گھر ہیں. جتنا پلاٹ لیں گے اتنا میں آپ کا یہاں پلاٹ کنسٹرکشن بھی ہو جائے گی, اس سے بھی آدھے پیسے میں کم ہو جائے گی, آپ کی پیسے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بچوں کے اپنے بچوں کے حال کے پروگرام کریں, ان کو گرد آلود ہوا سے نکالیں, اس جگہ پہ لے آئیں جہاں صاف آب و آباد ہے. اچھا اسکول دیں گے ہم آپ کو, اچھا ہاسپٹل دیں گے آپ کو, اسٹینڈرڈ کا اسکول اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل دیں گے. اور ان کی دینا خواہش تھی میرے بنگو والے دوستوں کی, اور میں دیکھتا ہوں جب آتے جاتے دیکھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے فتح جنگ جا رہے ہیں, وہ بسوں میں ایک سزوکی کے پیچھے لٹک گئے. تو مجھے بڑا دکھ لگتا ہے, سردی گرمی میں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پہلی فرصت سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ جناب پہلی فرصت میں جو ہے یہ اسکول کا بندوبست کریں فوری طور پر. ٹھیک ہے جی. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو 6-8 مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو تعمیر کر کے دیں گے آپ کو اسکول. ہاسپٹل بنا ہوا ہے آپ کا, اور انشاءاللہ میرے خود ڈیرے یہاں لگانے ہیں. جب تک یہاں ہم خود نہیں آئیں گے تو کام نہیں چلے گا. تو ہاسپٹل میں صرف ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر بھی لے آئیں گے انشاءاللہ ہم. کوئی ایسی بات نہیں, ہاسپٹل آپ کا ریڈی ہے. اسکول کا مسئلہ ہے, اسکول کا مسئلہ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کا حل کریں گے. ٹھیک ہے جی. مجھے دکھ لگا چند نادان دوستوں کے اوپر. جھوٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دوستوں کا دکھ یہ مجھے لگا کہ نادان دوست تھے, پھر بھی دوست ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہمارا الیکشن پر 8 مہینے انہوں نے ڈیلے کرایا ہمارا الیکشن. غیر ضروری قسم کی وہ عدالتی وہ اس میں پڑ گئے. تو پھر بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. ہمارے پھر بھی دوست ہیں, ہم تو آپ دل سے کسی کو برا نہیں کہا ہے, تو نہ آئندہ کہیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں صدقہ ایسے سمجھ کے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں نیت پہ, اللہ تعالیٰ نیت پہ دیکھتا ہے انسان کی نیت کیا ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں اور سستی رائج دے رہے ہیں, اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جس وقت تک میں نے ایک بندے کا جو ہے وہ پلاٹ کا قبضہ نہیں دے دیا. تو یہ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے ہم کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے 22 سال سے ہم نے سوسائٹی میں براہ راست, میں خود ہوں, پہلے ارشد صاحب تھے, اس کے بعد میں لگاتار چلا آ رہا ہوں. تو آج تک ہماری کسی نے ناجائز ہمیں تنگ نہیں کیا. نادان دوست ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. میرے وطن عزیز کے شہر کے لوگ تو ٹھیک ہیں, ضمیر کا پتہ نہیں. بات میری سمجھ آ گئی ہوگی شاید آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اس کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں کیونکہ آخری ٹائم ہوتا ہے, کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا. سائٹ سٹاف کی عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہمارا آج یہ کمیونٹی سینٹر اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اور خاص کر میں جناب محترم ضیاء خان صاحب کا, ویسے تو پورے بنگوں والے ہیں, وہ کیا کدھر گیا وہ چھوٹا بھائی میرا نظر نہیں آ رہا ہے, ظفر خان سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایک بات بتا دو, 2-3 دن پہلے کی بات, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ضیاء خان کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ظفر خان بڑا پیار کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لالا جی مجھے کہتے ہیں, کہتے ہیں لالا جی کس دن آپ سوسائٹی میں نہ ہوئے نا, سارا قبضہ میں خود کروں گا سوسائٹی کو. چلے نہیں دو ایک چل دے ٹھیک ہے اس کا یہ شاجی ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں, فنکشن جاری ہے. اور بنگو کے زمیندار جن کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت جلد اسکول بنائیں گے دوبارہ اچھی کیونکہ اس میں بھی بڑا تجربہ ہوا ہے. ٹھیکیدار آیا تھا تو پیسے لے کے بھاگ گیا, پھر ہمیں خود بنانا پڑا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں فیز 2 کی طرف. فیز 2 میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے.
दोस्तों को, क्योंकि फेज़ 2 में काफ़ी लोग हम लेट हैं, बहुत ज़्यादा लेट है फेज़ 2 में हम, इतना लेट हमें होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी बड़ी वजूहत ये थी कि पहले आपको पता है कोरोना आ गया, कोरोना में हमारे दफ्तर भी बंद थे इंतज़ामिया की तरफ से, उसके बाद ये रिंग रोड स्कैंडल आ गया। अब तमाशा देखें आप मेरे प्यारे पाकिस्तान का, ये भी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 23-20 साल पहले हमारा इंतकाल हुआ फतेह जंग में, तहसील में। तो रिंग रोड स्कैंडल जब बना, अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियाँ, अपनी गवर्नमेंट और अपना ही जो है ना वो स्कैंडल। तो रिंग रोड स्कैंडल अभी तक बन चुका होता रिंग रोड, ठीक है जी। तो रिंग रोड स्कैंडल बना जाता है तो हमें बुलाया गया लाहौर एंटी करप्शन में, बुलाया गया कि जी आपने जो रिंग रोड की वजह से फायदे बेची है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, अकल के हाथ लगाओ अकल को। हमारा तो पहला इंतकाल 20 साल पहले हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं। तो हमने कौन सा रिंग रोड की वजह से जो है ना वो प्लाट बेचे हैं, फाइलें बेची हैं। मैंने कहा जिन्होंने बेची होंगी उनसे जाकर सवाल करें। खुदा करके फिर भी पैदी साहब के 10-20 चक्कर उन्होंने लगवाए, फिर उन्होंने जान छोड़ी हमारी वहाँ से। ये तो हालत है हमारी। अगर ऐसे ना होता तो ये आज तक शहर कितना बस चुका होता। लेकिन फिर भी मेहरबानी है, फिर भी हम उनको सलाम करते हैं जिन्होंने फिर भी हमारी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज तक ऐसी कोई नाजायज़ बात नहीं हुई हमारे साथ, किसी इदारे ने की हो। हम इदारों का बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका भी एहतराम करते हैं। वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हमारे अपने इदारे हैं, हमारे लिए वो बने हुए हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस NOC फेज़ 1 का भी दिया, फेज़ 2 का भी इंशाल्लाह प्रोसेस में जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। इसके अलावा साइट का स्टाफ है, हमारे राणा साहब इंजीनियर हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। लेकिन क्या कह सकते हैं, उम्र सीधा हो गए, ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत किया इन्होंने। हमारे तारक साहब है इंजीनियर, तारक साहब हमारे इंजीनियर, बड़ा मेहनती शख्स है, बड़ी मेहनत कर रहा है, सोसाइटी के साथ मुखलस है। उसके बाद हमारे सूबेदार साहब हैं, अभी हमने उनकी वो अपॉइंटमेंट की है तकरीबन थोड़े टाइम में, लेकिन उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार कारकर्दगी है। सारा स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब अगर किसी ने कोई सवाल जवाब में से पूछना है तो पूछ सकता है। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।